Hello friends, myself KK Mehta, civil engineer DVC, done my master degree from IIT Durgapur. Experience of 12 years in the field of construction and maintenance of power plant. Today I am again here with you to discuss about the design of footing, to design of RCC footing. In the last lecture, we were discussing about the various types of guidelines given in the IS code to design a RCC footing. We have discussed about how much cover, about the cover we have discussed, how much cover we have to provide, how much development length we have to provide in the footing, how much the thickness that you have to give in the footing, have to decide on the basis of load and the say bearing capacity. ये हम लोगों ने देख लिया है. तो आज इसी गाइडलाइन को कंटिन्यू करते हुए मैं डिस्कस करूँगा कि रिइंफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करनी है. और मैं बता चुका हूँ, जब भी आप एक आरसीसी फुटिंग डिज़ाइन कर रहे हो, आपकी जॉब होगी, पहला जॉब टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फुटिंग की डायमेंशन को निकालना है. और फुटिंग को डायमेंशन निकालने का मतलब है यू हैव टू फाइंड द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द फुटिंग. इन तीन चीज़ों को आपको पहले निकालना है. और दूसरा जो काम करना है वो आपको पता करना है कि एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा. आप जब रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करोगे फुटिंग में वो कितनी होगी, क्या अमाउंट की होगी, यही आपका दो काम बनता है आरसीसी डिज़ाइन की फुटिंग में. इसी में देखते हैं हम लोग कि रिइंफोर्समेंट हमें तो निकाल लिया, सपोज़ कि इतना अमाउंट की रिइंफोर्समेंट लगेगी, तो किस वे में प्रोवाइड करना है, किस डायरेक्शन में कितना रिइंफोर्समेंट होगा, शॉर्टर में कितना होगा, लॉन्गर में कितना होगा, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. How to provide, so the topic is, you can say, how to provide reinforcement in RCC footing. So you can, so this is the continuation of guidelines as per IS 456/2000. This is the continuation, you can say. How to provide reinforcement, कैसे हम reinforcement प्रोवाइड करेंगे. Suppose if the shape of footing is square, then reinforcement is equally distributed in both sides. सपोज आपकी जो फुटिंग है वो स्क्वायर है, तो फिर कैसे आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे. मान लिया कि दिस इज द स्क्वायर फुटिंग एंड दिस इज माय, यू कैन से, ऑफ बी डायमेंशन एंड दिस इज आल्सो बी एंड इट इज अ स्क्वायर वन. तो आपकी दोनों साइड बराबर है, तो करना क्या है, आपकी जो रिइंफोर्समेंट होगी लाइक दिस 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 एंड दिस, आपने इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दिया. सिमिलरली आपको दूसरे डायरेक्शन में आई विल यूज द अदर कलर. दिस 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 like this, like this, like this, like this, like this. आपको इस फैशन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है. कहने का मतलब दोनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. पहले आपने ब्लैक कलर की जो मैं इंक यूज़ किया हूँ उस तरह से आपने रिइंफोर्समेंट डाल दिया, और दूसरा आपने रिइंफोर्समेंट में जो रेड कलर से मार्क किया हूँ इस डायरेक्शन में आपने डाल दिया. सो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास स्क्वायर फुटिंग है, आप इसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है.
लेकिन क्वेश्चन आती है जब आपकी फुटिंग स्क्वायर ना होकर के रेक्टेंगुलर होगी तब आप किस वे में प्रोवाइड करोगे. सो just write down here this. I want to erase this one. So the next is, if your footing is rectangular, if your footing is rectangular, if your footing is rectangular, then reinforcement is equally distributed in longer direction, but reinforcement in shorter direction is provided in central band and end band system. So what is this all about? Suppose you are having a rectangular footing. Just I want to draw a rectangular footing of this shape here. This is a rectangular footing. This is your length L because it's a rectangular one, and this is the width B. So what according to the definition, आपको क्या करना है कि longer direction में equal distribution करना है. बस provide like this, 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 like this, like this, like this. This is the equal distribution in the longer direction. Now how will you provide in the shorter direction? How will you provide in the shorter direction? So again, this is on longer direction. Longer direction में आपने प्रोवाइड कर दिया एक बारी. शॉर्टर डायरेक्शन में कैसे प्रोवाइड करोगे? How will you provide in shorter direction? This is rectangular footing. This is the B again, and you know this is the length. First of all, we will divide it in end band, and this is my, from this distance to this distance is your L by 4, and from here to here it is L by 2, and from here to here it is L by 4, and from here to here this is called end band. From here to here this is called central band, and from here to here it is called again end band. तो अब करना क्या है? सबसे पहले मुझे तो पूरी स्टिल निकाल लेनी है कि एरिया ऑफ स्टिल शॉर्टर डायरेक्शन में कितना चाहिए. तो एरिया ऑफ स्टिल जब मुझे मिल जाएगा कि शॉर्टर डायरेक्शन में कितना चाहिए, तो पूरा एरिया को हमें क्या करना है, आई हैव वन एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू IS कोड, उससे मुझे सेंट्रल बैंड के लिए रिइंफोर्समेंट निकाल लेना है. और सेंट्रल बैंड का रिइंफोर्समेंट जितना होगा उसे टोटल में माइनस करके जो बचेगा उससे इन दोनों बैंड्स में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देना है. दिस इज द वे एज पर IS कोड. सो what is the formula here and what is the expression given in the IS code to provide the reinforcement in the central band? So write down first here. What is the, so as per clause 34.3.1 page 65, as per clause this, area of
reinforcement in central band divided by total area of still in shorter direction equals to beta, sorry, this is 2 beta plus 1. And what is beta here? Beta equals to L by B, and L is length of footing and B is width of footing. So how can you find the area of reinforcement in central band? आपको इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ reinforcement इन सेंट्रल बैंड निकाल लेनी है, क्योंकि आपने पहले निकाल चुका है कि टोटल एरिया ऑफ स्टिल इन शॉर्टर डायरेक्शन. ये कैसे निकालोगे आप? ये आप निकालोगे कि शॉर्टर डायरेक्शन के अलाउ कितनी मूवमेंट आएगी, उस मूवमेंट के बेसिस में कितना एरिया ऑफ स्टिल लगेगा. आपको टोटल मिल जाएगा कितना इस डायरेक्शन में लगानी है. टोटल मिल जाने के बाद यूज दिस फार्मूला. इस फार्मूला में आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल बैंड में कितनी मुझे लगानी है. सपोज एरिया ऑफ स्टिल रिक्वायर्ड इन शॉर्टर डायरेक्शन इज 100 kg, and by this formula you got that the area of steel required in central band is 75 kg. So you will provide 75 kg equally in central band. So you will provide equally in central band like this. You can say I will be using this color. This is the 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो जो एरिया ऑफ स्टिल मुझे को सेंट्रल बैंड में मिला उसको जो 75 kg हमने यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब द रेस्ट 25 kg आई विल डिस्ट्रीब्यूट इन 2 बैंड्स. इस बैंड में 25 kg को हम लोग इस बैंड में और इस बैंड में हम लोग लगा देंगे. यू कैन से 12.5 kg इस बैंड में डालना है और 12.5 kg इस बैंड में डालना है. तो मुझे मिल गया वो जब क्वांटिटी, तो यहाँ हमने डाल दिया ऐसा करके एंड नाउ आई सपोज जस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से सेंट्रल बैंड और एंड बैंड में प्रोवाइड करनी है. अब इन दो फिगर को कंबाइन करोगे, हाउ इट विल लुक लाइक. तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा ये. आपको ये दिखेगा. सपोज दिस इज माई rectangular footing. This is my rectangular footing. This is my rectangular footing. What you got? You have to provide equally in your longer direction. This is my longer direction. Thus I have provided in this fashion. ऐसा हमने डाल दिया, हमने डाल दिया, हमने डाल दिया, हमने डाल दिया, हमने डाल दिया. This is my along longer direction. This is my B. You know this is my L. Now अब क्या करनी है, इस reinforcement की उसके ऊपर रखनी है. तो suppose this is my, you can say, end band reinforcement. This is my end band reinforcement, and from here to here, suppose this is my central band, here to here I have to provide reinforcement like this. I have to provide the reinforcement equally in central band. central band में मुझे इस तरह से reinforcement डालनी है. सेंट्रल बैंड का जो क्वांटिटी आएगा सेंट्रल बैंड में मुझे डाल देना है इस जगह पे. जो बचे हुए क्वांटिटी को दोनों एंड्स में डिवाइड करके डाल देना है.
दिस इज़ द वे टू प्रोवाइड इन्फोर्समेंट इन रेक्टेंगुलर फुटिंग. ये तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग में सरिया को प्रोवाइड करते हैं, स्टील को प्रोवाइड करते हैं. अब बात आती है कि आपने देखा कि डिज़ाइन में कैलकुलेशन किया कि बहुत ही कम क्वांटिटी स्टील की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं कि आप उस क्वांटिटी को प्रोवाइड करते हो या उसी क्वांटिटी को प्रोवाइड कर दोगे. हमें एज पर IS 400-2000 एक गाइडलाइन दिया गया है कि मिनिमम इन्फोर्समेंट, दैट यू नो, आई थिंक इन स्लैब chapter you know it. For slab, what is the minimum enforcement? So write down minimum enforcement provided. कितना हम लोग मिनिमम इन्फोर्समेंट डालेंगे? You know that minimum reinforcement provided in footing is as follows. First one is 0.15% of gross cross-sectional area, cross-sectional area. This is for Fe 250 steel, or you can say mild steel. Secondly, or 0.12% of gross cross-sectional area for Fe 415, you can say HYSD बार्स के लिए. कहने का मतलब है कि सपोज यू हैव अ plan like this and you cut across this. Suppose this is XX, you are getting like this. Suppose this is B and this is D in longer direction XX, and suppose if you cut here, if you take cross section here YY, you can just understand what is the meaning of this. So you will get a cross section like this. It will be a bit smaller because this will be L here. This will be L because this is my L and this is my B, shorter direction. So this will be B here. So this is my YY, section YY, and this is B and this is D. D is the overall depth of the footing. फुटिंग की थिकनेस बता रहा हूँ. अगर आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है कि लॉन्गर डायरेक्शन में आपकी जो रिइंफोर्समेंट आएगी वो करना पड़ेगा LD. यू कैन से area of steel provided will be AST, minimum AST, you can say minimum AST equals to 0.15% into, you can say, suppose if I am assuming that I am using a mild steel, into what you will write here, LD for this direction. इस लॉन्गर डायरेक्शन अगर कट करो अब एक्स अबाउट लॉन्गर डायरेक्शन मुझे LD होना चाहिए और मिनिमम AST इक्वल्स टू 0. सपोज -1% ऑफ BD इन योर शॉर्टर डायरेक्शन. सो इफ एंड इफ कहने का मतलब है कि अगर डिज़ाइन में आप देखते हो कि रिइंफोर्समेंट बहुत कम आ रहा है, बिकॉज हो सकता है कि मोमेंट कम हो, लोड कम हो, तो मुझे ऐसा नहीं कि वही प्रोवाइड कर देना है. मेरे को मिनिमम इन्फोर्समेंट जो एज पर IS कोड ने बता दिया है कि 0.15% एंड 0.125% फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील फॉर माइल्ड एंड HYSD, आपको इसी तरह से निकाल लेना पड़ेगा कि मिनिमम आखिर मुझे कितना एरिया ऑफ स्टील वहाँ पर प्रोवाइड करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रोवाइड इन्फोर्समेंट
in the RCC footing. Now move to the permissible stresses in one way shear and punching shear. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिया गया है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप फुटिंग का थिकनेस डिसाइड करोगे उसमें वन वे शेयर और टू वे शेयर का यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर परमिसिबल कितना स्ट्रेस दिया हुआ है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सो राइट डाउन परमिसिबल स्ट्रेस So write down the permissible. You can say first you write down nominal stress. Nominal stress. It is represented by tau v. It is the stress coming to the structure, due to design load. As you know that tau v equals to Vu by Bd, where Vu is design shear force, B is width of footing, D is effective depth of footing, effective depth of footing. So this is all about a nominal stress. And now one thing we know is that what is design stress? Design stress, this is tau c. It is the stress, it is a natural stress, you can say natural stress of concrete without providing shear reinforcement, which depends upon grade of concrete and percent of area of steel. As per table 5.1, this is AST by BD into 100, and here is my M20 concrete, M25 concrete. This is less than 0.15, 0.25, it's 0.28 Newton per millimeter square, 0.29 Newton per millimeter square, 0.36 Newton per millimeter square, 0.36 Newton per millimeter square. आपको पता है ना, जब भी डिज़ाइन लोड के चलते जो स्ट्रेस आती है उसे नॉमिनल shear stress बोला जाता है. दिस इज नॉमिनल shear stress. अगर आप कॉलम की डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पर shear को रेसिस्ट करने के लिए स्टीरअप्स का यूज़ करते हो. बट व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग अ स्लैब और व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग अ फुटिंग, यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ अ shear इन्फोर्समेंट. आप shear इन्फोर्समेंट यूज़ नहीं करने जा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल इन्फोर्समेंट इस्तेमाल करने जा रहे हो. उस टेंसाइल इन्फोर्समेंट जितना हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वेदर माई ग्रेड इज़ M20, M25, M30, M35, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हुए मुझे इवन इफ आप अगर नहीं प्रोवाइड किए हो शेयर इन्फोर्समेंट,
कंक्रीट के पास एक नेचुरल अपनी शेयर स्ट्रेंथ होती है। वो कितनी होगी वो आपको डिपेंड करेगी कितना आपने इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया टेंसाइल और कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया। यू विल गेट इन दिस टेबल, आपको टेबल में ये मिल जाएगा। तो जब देखोगे कि 0.15% बिलो या इक्वल टू किया हूँ मैं, तो ये वैल्यू आपको टॉसी की मिल जाएगी। और डिज़ाइन में आपको हमेशा याद रखना है दिस टॉसी फॉर सेफ डिज़ाइन, टॉसी मस्ट बी ग्रेटर देन टॉवी। टॉसी मस्ट बी ग्रेटर देन टॉवी होना चाहिए। अगर आपकी सेफ डिजाइनिंग है तो जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ है नेचुरल, वो ज़्यादा होनी चाहिए जितना आपकी ऊपर से लोड आ रही है उसके चलते जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई थिंक यू मस्ट हैव डिस्कस्ड और यू नो दिस थिंग। नाउ कम टू द दिस इज ऑल अबाउट द वन वे शेयर। दिस टाइप ऑफ शेयर you will get in one way shear. This is for one way shear. आप जब वन वे के लिए डिजाइन करोगे ये बहुत काम आने वाला है। अब हम लोग देखेंगे कि जब टू वे शेयर और पंचिंग शेयर आएगी तब किस तरह के परमिसिबल स्ट्रेस मुझे एस कोड ने दिया है। नाउ राइट डाउन दिस इज ऑल अबाउट वन वे शेयर। अब हम लोग देखेंगे कि टू वे शेयर में क्या परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है। So as per clause 31631 page 59, permissible stresses in two-way shear or punching shear is Ks Taussy. This is Ks Taussy. And what is Ks here? This is Ks is equals to 0.5 plus beta. And what is beta here? Beta is equals to B by A. This is B by A. And what is B here? B is the shorter dimension of column. Shorter dimension of column. And what is A here? It is longer dimension of column. You can say that this is, suppose this is my footing and this is A and this is B. And what is Taussy here? Taussy equals to 0.25 root under FCK. And what is FCK? आपको पता है characteristic strength of concrete in Newton per millimeter square. सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि वन वे शेयर के लिए क्या होता है, कितना परमिसिबल स्ट्रेस है, और टू वे शेयर के लिए क्या परमिसिबल स्ट्रेस है। टू वे शेयर के लिए परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन टू वे शेयर और पंचिंग शेयर इज Ks Taussy. व्हाट इज Ks इज 0.5 प्लस बीटा, बीटा इज B by A, B इक्वल्स टू शॉर्टर डायमेंशन ऑफ कॉलम, यहाँ पर आपका आ रही है, A इक्वल्स टू लॉन्गर डायमेंशन ऑफ कॉलम, एंड Taussy is, and this is according to the limit state method of design. This is according to the limit state method of design. Taussy equals to 0.25 FCK root over, and FCK, you know, characteristic strength of concrete in Newton per millimeter square. So this is all about the permissible stresses in one way shear and two way shear.
Now we'll discuss about the pressure distribution under the footing. So write down pressure distribution under the footing. Pressure distribution under the footing. Pressure distribution, this is not required. Pressure distribution under the footing. Suppose this is my footing. I am drawing a diagram. This is my footing, and I am applying a load here. And this is on sandy soil. This is on clay soil, and this is for assumed pressure distribution. Assumed pressure distribution for design, and this will be uniform. कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू इलास्टिक थ्योरी ऑफ सॉइल, अगर आपकी फाउंडेशन किसी सैंडी सॉइल पे है और क्ले सॉइल पे है तो आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको क्या होगा, इस लोड को रेसिस्ट करने के लिए एक रिएक्शन होगा. यू विल गेट अ रिएक्शन लाइक दिस. And when you are having your foundation on clay soil, your reaction will be like this. And when you are having on your sandy, it is your convex. And when you are designing, you have to assume that your pressure is uniform. आप जब डिजाइन करोगे आपको assume करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म है. मीन्स जितना आपकी एजेस पे है उतना ही आपका सेंटर पे भी होना चाहिए. इस चीज़ को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर. कहने मतलब प्रैक्टिकली जब देखोगे साइड पे आपका इलास्टिक थ्योरी से, दिस इज वी हैव गॉट फ्रॉम द इलास्टिक थ्योरी ऑफ सॉइल. अगर आपकी फाउंडेशन सैंडी सॉइल पे है, आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो नीचे से रिएक्शन लगेगा इस लोड को रेसिस्ट करने के लिए वो कॉन्वेक्स होगा. जब आपका फाउंडेशन क्ले सॉइल पे है, आपकी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कॉनकेव होगी. मीन्स मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एजेस से रिएक्शन होगा. लेकिन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनालिसिस फॉर द डिजाइन पर्पस. सो हम लोगों ने क्या किया है, एक अज्यूम कर लिया कि हमारा जो ऊपर से लोड और नीचे का जो रिएक्शन होगा, सपोज Q इज माई रिएक्शन, यू कैन से सेफ बेयरिंग कैपेसिटी Q, सपोज Q and this is Q, and Q is the safe bearing capacity. Q is the safe bearing capacity. And this pressure distribution is as per elastic theory of soil. तो अब ये यूनिफॉर्म कैसे होगा?
उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, जो लोड ऊपर से आ रहा है उसका CG और जो फाउंडेशन का CG जो होगा उसे मुझे मैच करना पड़ेगा. सो यू राइट ऑन वन पॉइंट हियर, to make the pressure distribution uniform, CG of the load and CG of the footing must coincide. ये अगर आप करते हो तो आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो रेसिस्ट करने का जो आपकी मैकेनिज्म होगी, दैट विल बी यूनिफॉर्म. सो याद रखना, जब भी आप साइड पे काम करोगे आपको ये ख्याल रखना है कि आप जो ऊपर से लोड लग रही है इट शुड बी सेंट्रिक, कहीं ना कहीं वो CG पे लगना चाहिए स्ट्रक्चर का, और जो वो लोड पास करना चाहिए वो पास करना चाहिए CG और फुटिंग से, तभी आपका फेलियर का चांसेस बिल्कुल कम रहेगा. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस नोट. अब बात आती है, जिस डिज़ाइन करने के क्रम में आप देखोगे एक टर्म का बहुत बार यूज़ होगा, वो है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी. जो आपको सॉइल में पढ़ना है मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, थोड़ा ब्रीफ आइडिया में दे देता हूँ कि व्हाट इज सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी. सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, जो मैं Q से डिनोट किया. तो इट इज द लोड कैरिंग capacity of soil without the danger of shear failure. यह सॉइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, आपको पढ़ना है ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी, नेट बेयरिंग कैपेसिटी, बट हियर यू विल बी यूजिंग सेफ बेयरिंग कैपेसिटी. सेफ का मतलब है सॉइल पे आप कितना लोड लगा सकते हो वो सेफली कैरी कर सकता है विदाउट द डेंजर ऑफ shear फेलियर. इस चीज़ को हम लोग सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं. अब बात आती है कि जब फुटिंग की डायमेंशन डिसाइड करोगे, when you will decide the dimension means length and breadth of the footing, you have to use 3 parameters. First one is load, soil bearing capacity, and third one is the moments. So write down, for finding the footing dimension, this is the point, for finding the dimension of footing, load, moments and safe bearing capacity is used. आप जब भी किसी भी फुटिंग का पहला जो मेरा काम रहेगा, जब डिज़ाइन करेंगे हम लोग फुटिंग का, तो उसमें मेरा पहला जॉब रहेगा हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फुटिंग. तो वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ द फुटिंग निकालने के लिए मुझे चाहिए कि व्हाट इज़ द टोटल लोड कमिंग टू द स्ट्रक्चर. क्या लोड 100 टन है, 200 टन है, अगर वो लोड मिल जाता है, और सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, जो कि ये डाटा आपको मिलेगा जियो टेक्निकल इंजीनियर लेबोरेटरी से देगा कि आखिर जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट हो रही है उस जगह का सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कितना है. दिस डेटा यू विल गेट फ्रॉम द जियो टेक्निकल इंजीनियर. आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको बता देगा इस सॉइल जहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर होगी कितनी कैपेसिटी है. वहाँ से अगर वो मिल जाएगा, और लोड आप अगर कोई बिल्डिंग कर रहे हो या कोई भी एक स्ट्रक्चर कर रहे हो, वहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी लोड आ रही है. अगर लोड और मेरे को अगर नीचे का सॉइल का जो स्ट्रेंथ पता चल जाए, देन आई कैन डिसाइड द एरिया ऑफ द फुटिंग. सो हियर आई हैव रिटन, what I have written,
area of footing is equals to total load divided by safe bearing capacity. Safe bearing capacity. Total load means, what is total load here? Total load is equals to load on structure plus weight of footing. Weight of footing. And weight of footing कितना लेना है? Assume weight of footing equals to 10% of load coming to the structure. 10% of load coming to structure. And the next point is design of footing is done. Next point is design of footing is done on the basis of factored load. So as per LSM, you can say this will be equals to 1.5 into Q, that is load stress due to column load only. This Q, what is Q here? Q is stress due to column load only. कहने का मतलब है, जब आपको एरिया ऑफ फुटिंग निकालनी है, आपको लोड चाहिए एंड डिवाइडेड बाय द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी. आपको यू हैव डिसाइडेड द एरिया ऑफ द फुटिंग. अब एरिया ऑफ द फुटिंग जो निकालोगे, इट विल बी इन सम फ्रैक्शन, सो यू विल प्रोवाइड लिटिल बिट मोर. थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा. सपोज इफ़ यू आर गेटिंग द लेंथ इज 3.9 मीटर, सो यू विल बी प्रोवाइडिंग 4 मीटर. तो 4 मीटर अगर प्रोवाइड करते हो तो आपकी जो स्ट्रेस है वो घट जाएगी, बिकॉज योर एरिया ऑफ जो फुटिंग वो बढ़ गई है. तो वो जो एरिया जो आपकी स्ट्रेस है ड्यू टू इंक्रीज्ड एरिया ऑफ फुटिंग, योर स्ट्रेस रिड्यूसेस. सो दैट स्ट्रेस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1.5 वैल्यू. दैट स्ट्रेस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1.5 वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टर्ड लोड. कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सॉइल का 10 टन पर मीटर कैपेसिटी, अगर उसकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी है, तो जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ फुटिंग, तो मैं डिज़ाइन करूँगा कि जो उसकी कैपेसिटी है वो 15 तक ले पाएगी, 15 टन पर मीटर स्क्वायर तक ले पाएगी. अगर मुझे डिज़ाइनर ने दे दिया, जियोटेक इंजीनियर ने, कि योर सेफ बेरिंग कैपेसिटी इज 10 टन पर मीटर स्क्वायर, ये 10 टन का लोड ले सकता है पर मीटर स्क्वायर, तो मैं ऐसा फुटिंग डिज़ाइन करूँगा कि वो 15 टन पर मीटर स्क्वायर सेफली लोड कर सके. दिस इज कॉल्ड द फैक्टर्ड लोड. तो हमारी जो डिज़ाइन होगी, इट विल बी ऑन फैक्टर्ड लोड. सो फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द गाइडलाइंस गिवन इन द IS कोड फॉर डिज़ाइन ऑफ RCC फुटिंग, जिसमें कि हम लोगों की डेवलपमेंट लेंथ कितनी होगी, कवर कितना होगा, हमारा इन्फोर्समेंट कैसा होगा, हमारा परमिसिबल स्ट्रेस कितना आ रहा है, कितना हम लोग इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. इन सारी जितने भी क्राइटेरिया है हम लोगों ने देख लिया है. कैसे हम लोग एरिया ऑफ फुटिंग निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग फैक्टर लोड पर डिज़ाइन करेंगे, दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. So this is the end of the today's lecture. In the next lecture, we will be discussing about the design steps of RCC footing. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Stay safe, stay home.